Afternoon students, today we are going to learn new topic in English grammar. The topic name is an alphabetical order. How many alphabets we have in English? Yes, we have 26 alphabets. Okay, they are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. That means A to Z. These are the alphabets we have. What is the meaning of an alphabetical order? An alphabetical order or ABC order is the order of the letter of the alphabet. जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है, जो हमारे लेटर्स है, जिस तरीके से वो जिस ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, यही हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और ABC ऑर्डर होता है. और वी कैन से दैट alphabetical order is an indexing method in which names, terms or words are arranged in the same sequence as the letters of the alphabet A to Z. Means alphabetical order एक ऐसा indexing method है जिसमें नाम्स, कुछ टर्म्स या कुछ वर्ड्स इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं जिस तरीके से हमारे हमारे अल्फ़ाबेट्स या हमारे लेटर जिस सीक्वेंस में पहले से अरेंज है. Now tell me why arranging words in alphabetical order is important. Why it is so important to arrange the words in alphabetical order? Because we have many tasks to do, or we can say that to complete many tasks such as looking up a word in a dictionary or telephone directory. मीन्स ऐसे हमारे पास कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे टास्क होते हैं जिसमें से एक ये होता है कि जो वर्ड्स हैं डिक्शनरी में और या टेलीफोन डायरेक्टरी में उसे देखना हमारे लिए इजी हो जाता है. एंड इफ़ these all are not saved in alphabetical order, it would be very difficult for us to find. मीन्स अगर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज ना हो तो हमारे लिए किसी भी वर्ड को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो बिफोर पुटिंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देर आर सर्टेन rules that we have to keep in mind. Now move to the rules. What are the rules to remember? Rule number 1. To put words in alphabetical order, we should look at the first letter of each word. मीन्स जब भी हम वर्ड्स को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम हर एक वर्ड का कौन सा लेटर देखेंगे. येस, इट्स first letter. Let's arrange these words in alphabetical order. According to the English alphabets, we have to start from letter A. So tell me, is there any word starts with the letter A? No, there is no word starts with the letter A. Is there any word start with the letter B? Yes, there is a word starts with the letter B. The word is badminton. Okay, is there any word starts with the letter C? Yes, there is a word that is cricket. Is there any word starts with the letter C and D? D. Yes, there is no word starts with the letter D. Is there any another word starts with the letter E? No. Is there any next word or other word starts with the letter F? Yes, there is a word starts with the letter F. The word is football and last is hockey. ओके, बिकॉज देखिए यहाँ पे जितने वर्ड्स हमने दिए गए हैं 4 वर्ड्स, इसके हमने फर्स्ट लेटर को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिससे हम देख सके कि इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा है और इसे अरेंज करने के लिए हमारे लिए इजी हो जाए. नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर स्लाइड्स. वी हैव सम वर्ड्स टू अरेंज. Let's see what are the words. The words are book,
pencil, teacher, chalk, eraser, and student. In all these words, we put first letter in red color. What are the letters? It's B, P, T, C, E, and S. Now tell me which letter comes first. Is it B, P, T, C, E or S? Yes, it's B. तो हमारा फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा इट्स B. नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा C. नेक्स्ट eraser, then pencil, then student and last is teacher. देखिए ये राइट साइड में जो भी वर्ड्स हैं इसमें फर्स्ट लेटर जो है B, C, E, P, S and T, ये सारे वर्ड्स सारे लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हैं और इसी बेस पे हमने इन सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है. So we can say that all these words are arranged in alphabetical order. Now move to the rule number 2. If more than one word starts with the same first letter, we should look at the second letter of the word. Means अगर जो हमारे पास वर्ड्स है और उसमें फर्स्ट लेटर सेम है तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम सेकेंड लेटर को प्रीफर करेंगे. नाउ सी व्हाट आर दी वर्ड्स वी हैव. एग्जाम्पल बीन्स, बनानाज, एप्पल्स, चीज़, कैरेट. सो टेल मी विच लेटर कम्स फर्स्ट. इज़ इट बी, ए और सी? यस, इट्स ए. तो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा ए. नाउ सी द डिफरेंस. बीन्स एंड बैग्स दोनों ही वर्ड स्टार्ट्स हो रहे हैं सेम लेटर से, दैट इज़ बी. तो हम सेकेंड लेटर को प्रीफर करेंगे. यहाँ पे सेकेंड लेटर अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज़ ई एंड ए. सो टेल मी विच लेटर कम्स फर्स्ट. इज़ इट ई और इज़ इट ए? येस, इट इज़ ए. तो हमारा सेकेंड वर्ड होगा बनानास. थर्ड वर्ड होगा बीन्स. अब देखिए नीचे फिर से सेम एग्जाम्पल्स आ रहे हैं हमारे पास, चीज़ एंड कैरेट. सी बोथ द वर्ड स्टार्ट्स विद द लेटर सी, सो वी प्रीफर सेकेंड लेटर. ओके, द लेटर्स आर एच एंड ए. सो टेल मी विच लेटर कम्स फर्स्ट. इज इट एच और इज इट सी? सॉरी, इज इट एच एंड और इज इट ए? yes, it's A. So the next word is carrot and the last word is cheese. Okay, now we will move to next rule. Rule number 3. If more than one word starts with the same first and second letter, we should look at the third letter of the word. मीन्स जब हमारे पास जो वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और उनके फर्स्ट एंड सेकंड लेटर दोनों सेम हैं, तो हम उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कौन सा लेटर प्रीफर करेंगे? यस, हम थर्ड लेटर प्रीफर करेंगे. नाउ सी दी एग्जाम्पल्स. इट्स चिली, चॉक, चर्च, चीज़, चॉइस. यहाँ देखिए फर्स्ट एंड सेकंड लेटर जो रेड से लिखा हुआ है, ये दोनों हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लेटर दोनों सेम हैं. सो हम किसे देखेंगे? हम थर्ड लेटर को देखेंगे. थर्ड लेटर देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है. सो नाउ थर्ड लेटर कौन से हैं? इट्स आई, ए, यू, ई एंड ओ. सो टेल मी विच लेटर कम्स फर्स्ट? यस, इट्स ए. तो हमारा फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा इट्स चॉक. ओके, सेकंड लेटर कौन सा आएगा? यस, इट्स ई. तो हमारा सेकंड वर्ड होगा चीज़. थर्ड वर्ड होगा हमारा चिली. फोर्थ होगा हमारा चॉइस एंड लास्ट इज़ चर्च. क्योंकि ए उसके बाद लेटर आता है ई,
सीक्वेंस वाइज। फिर सीक्वेंस में थर्ड लेटर कौन सा आएगा? आई, फिर ओ, देन यू। Students, try to practice with the help of these examples. Arrange the following in alphabetical order. जो भी हमने पीछे examples and rules देखे हैं उस बेस पे यहाँ पे आपके सामने 3 questions हैं जिसे आपको practice करनी है. First is the names of the member of your family. You have to write down all the names of the family member and arrange all the names in alphabetical order with the help of previous examples. Okay, and days of the week. There are 7 days in a week, so you have to write all the days names and arrange them in alphabetical order. And last, the dishes you love to eat. आपको जो जो डिशेस पसंद है उन सारे डिशेस का आप नाम लिख लीजिए और फिर उन सारे डिशेस के नाम को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए. होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स एंड रूल्स in this video. Hope you all understood. Thank you.